Hello students, having understood intrinsic and extrinsic semiconductor, let us now try to understand how a PN junction diode is formed and what are the electrical characteristics of a PN junction diode. This is a very important component with respect to electronic circuits. Okay, so see, in the previous section what we studied is that by adding impurity to the semiconductor, we can increase the conductivity of the semiconductor, because semiconductor in its pure form, that is intrinsic semiconductor, the conductivity is very less. So by adding impurity we can increase the conductivity. When we add impurity, what we do is actually we are increasing either the number of electrons or the number of holes, and depending upon that we have two types of extrinsic semiconductor called as P type semiconductor and N type semiconductor. P-type semiconductor and N-type semiconductor. In P-type semiconductor, majority charge carriers are holes. Majority charge carrier are holes and minority charge carriers are electrons. That means in a P-type semiconductor we have large amount of holes and very small amount of free electrons, and that free electrons will be available only when you apply external power supply to the PN junction diode, P-type semiconductor, and when you apply external power supply, few covalent bond break, because of that few electrons will be produced. Similarly, in an N-type semiconductor, the majority charge carriers are electrons. Majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. So current conduction in N-type semiconductor will be because of electrons, and in P-type semiconductor it will be because of holes, but the minority charge carriers are again of importance, and you have to remember that minority charge carrier in P-type is electrons and minority charge carrier in N-type semiconductors are holes. Okay. Now let us try to understand how a PN junction is formed. Of course, there will be a fabrication process. Because you cannot connect to one, you cannot take one P-type and N-type semiconductor joined together. It will not show the electrical characteristics. For that means to form a PN junction, what you have to do is you have to fabricate. So see how it is fabricated. So first an N-type semiconductor is taken. So a N-type semiconductor has large amount of free electrons available. So this is your N-type semiconductor. Okay, N-type semiconductor, and over that we to get holes, which type of impurity has to be doped? To get holes we have to dope trivalent impurity. Okay, so when you dope trivalent impurity, for example indium, so a metal of indium is kept on this N-type semiconductor. This entire setup is heated at around 500 degree Celsius. So at that high temperature, what happens is this indium melts into the N-type semiconductor, and form one more region. Okay, one more region. Now in that region what happens is, as it is a trivalent impurity, it will keep on producing large amount of holes. Already electrons were there in that region. At some point the number of holes will overcome the number of electrons. Exactly at that point this setup is cooled down so that it becomes solid again, and then we introduce two electrodes, one on N region and one on P region, and this junction
this junction is called as PN junction. The electrode which has been taken out of the N region is called as cathode, and the terminal which has been taken out of the P region is called as anode, and this is called as PN. This is called as PN junction. Okay, so now we will draw a simplified diagram so that you can understand how exactly we. So this is the PN junction. On one side you have P region, on one side you have N region. Two terminals has been taken out. This is called as anode, this is called as cathode, and in P region what you have is holes, and on N region you have electrons. Okay, so this is what we get after a fabrication process. This is what we get. Okay, so now, and what is this? This will be called as PN junction. This is called as PN junction. Now as soon as PN junction is formed, the charge carrier near the junction are in excited state. When I say the charge carrier are in excited state, that means they have enough energy. So when electrons near the junction in N region where there is electrons, and these electrons are having large amount of energy, they are in the excited state. So what they do is they diffuse into P region and occupy this empty space. So what left in N region? The electrons from that region has been transferred or diffused into P region. So near the junction in N region, what left is an empty space. So that empty space is called as holes. And near the junction in P region, what have you done? The electrons has occupied that empty space, so they have got electrons, right? Here it will be electrons. So the charge carrier because of which the conductivity will be there in P region are holes, but near the junction there is absence of that charge carrier. Similarly in N region the conductivity will be because of electrons, but near the junction in N region there is a absence of that charge carrier, right? And that is because the electrons has been diffused into P region. अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्यों नहीं जम कर सकते? I have clearly specified that electrons present near the junction are in the excited state. उन्हीं के पास में इतनी एनर्जी है कि वो डिफ्यूज करके दूसरे रीजन में चले जाए. बाकी जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो डिफ्यूज हो सके. ठीक है, सो देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन डोपिंग एंड डिफ्यूजन. डोपिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, वो हो गया डोपिंग. और डिफ्यूजन क्या हो गया? जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा, चार्ज कैरियर जो जंक्शन के एकदम करीब है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, और जब वो एनर्जी ज़्यादा रहेगी दे एंटर इनटू, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन. वो जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं एन रीजन से पी रीजन में उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. तो एक बार डिफ्यूजन हो गया उसके बाद में क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाना भी चाहेंगे पी रीजन में तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे, और ये होल्स है ना, ये होल्स पी रीजन से एन रीजन में जाना भी चाहेंगे तो ये होल्स उनको रिपेल करेंगे. इसका मतलब है यहाँ पर एक इंसुलेशन जैसे फॉर्म हो गया. और वो इंसुलेशन क्यों है? बिकॉज जो चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होना चाहिए वो चार्ज कैरियर वहां पर नहीं है. तो वो जो रीजन है वो रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन. ठीक है, डिप्लीशन, डिप्लीटेड का मतलब है एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ. तो डिप्लीशन रीजन का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर. जो रीजन बना है उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन रीजन. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर. ओके, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर. मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो कराना है तो ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा. ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो इंसुलेशन का काम कर रहा है, वो इंसुलेशन
को हटाना पड़ेगा, वो उसको वैनिश करने के लिए आपको बाहर से सप्लाई देना पड़ेगा, है समझ में? सो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। ओके, सो आई होप you have understood the basic formation of a PN junction diode. Now we will try to understand the electrical characteristics by applying external voltage. Now let us try to understand the electrical characteristics of a PN junction diode. As I told you in the previous section that a PN junction is made of a p-type semiconductor and an n-type semiconductor which has been suitably fabricated. This terminal is called as anode, this terminal is cathode. Majority charge carriers are in p regions are holes, in n region you have electron. But as soon as a PN junction is formed, diffusion will take place, and near the junction in n region you have holes, in p region you have electrons. As this region is depleted of charge carriers, this region is called as depletion region, and to overcome this depletion region you have to apply external potential. So that potential is called as potential barrier. So with this basic knowledge, now let us understand two types of polarity in which a PN junction diode can be connected. Okay, so that the polarity in which the PN junction diode is connected is called as biasing. Okay, so the first one which we will try to understand is forward biasing. Okay, so in a forward biasing, see here, or I'll draw the diagram again separately so that you can understand properly. In a forward biasing, the p type, that means p region, is connected to a positive terminal, and n region is connected to a negative terminal. Okay, so this is the external potential which has been applied. Anode is connected to positive, cathode is connected to negative, and see what happens to the junction. See, this is, as I told you, it has majority charge carrier as holes. Here the majority charge carriers are electrons. So now this is the depletion region where there is a depletion of charge carrier. Okay, now see how the polarity has been connected. P connected to positive, N connected to negative. So holes will be repelled by this positive terminal, so they will move towards the junction, and this negative terminal will repel the electrons, so these electrons will be repelled by the negative terminal, and they will move towards the junction. So by this type of polarity, what we are trying to do is we are repelling both the charge carrier, and the charge carriers are moving towards the junction. जैसा मैंने बताया था आपको, आप ये चार्ज कैरियर यहाँ क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनके पास में एनर्जी नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो। अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे, अगर इस टाइप से दोगे कि पी रीजन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन रीजन कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये जो डिप्लीशन लेयर बना था, है ना, जहाँ पर चार्ज कैरियर नहीं थे जिनके वजह से कंडक्टिविटी होगी, अब वो एरिया में आप चार्ज कैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? आप वो चार्ज कैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब अगर आप चार्ज कैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो डिप्लीशन लेयर जो है उसका जो विड्थ है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिप्लीशन लेयर विड्थ किसके वजह से थी? क्योंकि वहाँ चार्ज कैरियर नहीं था। अब आपने ऐसा पोलैरिटी लगा के जब चार्ज कैरियर देना शुरू किया तो व्हाट हैपेंस टू द डिप्लीशन लेयर विड्थ, वो धीरे 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 कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वहां पर कोई डिप्लीशन लेयर नहीं रहेगा। डिप्लीशन लेयर नहीं है मतलब पोटेंशियल बैरियर नहीं है, और अगर पोटेंशियल बैरियर नहीं है इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट आराम से फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे, होल्स पी रीजन से एन रीजन में जाएंगे, एंड देयर विल बी करंट विच विल बी फ्लोइंग इन अ PN जंक्शन डायोड। ओके, तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाता हूँ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ठीक है। सो द वोल्टेज इज से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7।
तो अगर ऐसा हम लोगों ने कर्व बनाया और ये मिली एम्पियर करंट रहेगा, तो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल अगर आप सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिए हो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए, तो क्या होगा, इनिशियली देयर विल बी नो करंट। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डिप्लीशन लेयर है। जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे, ये जो चार्ज कैरियर इनको एनर्जी मिलती रहेगी, दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, और एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिस टाइम पे डिप्लीशन रीजन जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना चालू होगा। तो इनिशियली नो करंट फ्लोज फॉर सिलिकॉन at 0.3 volt, current increases exponentially. The potential at which this happens is called as, इसको बोलते हैं knee voltage. For silicon it is 0.3 volt and for germanium it is 0.7 volt. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नी वोल्टेज, द पोटेंशियल एट विच द डिप्लीशन लेयर वैनिशेस एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो सिलिकॉन के लिए कितना है 0.3 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए कितना है 0.7 वोल्ट। अगर आपको याद होगा तो उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 3rd ऑर्बिट में है और जर्मेनियम का 4th ऑर्बिट में है ना, जर्मेनियम का 4th ऑर्बिट में। सो सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दिया, 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ओके, सो तो ये जो अगर पोटेंशियल यहाँ पर डिप्लीशन रीजन 0 हो जाता है और करंट फ्लो होगा, तो दिस विल बी फॉर अ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 3rd ऑर्बिट में है और जर्मेनियम में 4th ऑर्बिट में, एंड 4th ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द 3rd ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन सिलिकॉन। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम को ब्रेक करने के लिए, मतलब उनको फ्री करने के लिए कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन में है क्योंकि वो 3rd ऑर्बिट में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4th ऑर्बिट में है, तो इसीलिए वो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। दो बोथ आर टेट्रावैलेंट मटेरियल, लेकिन ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डिप्लीशन लेयर जीरो करने के लिए जो बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अपने को देना पड़ेगा नी वोल्टेज लाने के लिए, वो सिलिकॉन में रहेगा 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में रहेगा 0.3 वोल्ट, है ना। तो जैसे आप पीएन जंक्शन डायोड को P कनेक्टेड टू पॉजिटिव करोगे और N कनेक्टेड टू नेगेटिव करोगे तो डायोड विल गो इनटू फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चला गया इसका मतलब है करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड में। तो इसके बाद मैं जब भी बोलूं कि पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, आपको ये समझना है कि डिप्लीशन लेयर जीरो होता, जीरो कौन से पॉइंट पे होता, नी वोल्टेज पे होता। वो नी वोल्टेज कितना है, सिलिकॉन के अगर सेमीकंडक्टर यूज किया है तो 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम अगर यूज किया है तो 0.3 वोल्ट। ओके, और जैसी नी वोल्टेज आ गया उसके बाद में करंट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द अप्लाइड वोल्टेज। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सेकेंड जो है दैट इज सेकेंड इज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ऑफ कोर्स ये पीएन जंक्शन डायोड है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। सो दिस इज P, दिस इज N, ये डिप्लीशन रीजन है। और अब अपन क्या करेंगे, रिवर्स बायस पोलैरिटी उल्टा कर देंगे, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहाँ पर P कनेक्टेड टू नेगेटिव करेंगे और N को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। सो दिस इज माइनस प्लस, P कनेक्टेड टू नेगेटिव, N कनेक्टेड टू पॉजिटिव। नाउ सी, ऑफ कोर्स इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर कि क्या होगा जैसी मैं ऐसा पोलैरिटी लगाता हूँ, ये जो चार्ज कैरियर है ये अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव है ना, होल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या हो रहा, दोनों ही केसेस में ये जो चार्ज कैरियर है जिनके वजह से करंट फ्लो होगा वो जंक्शन से दूर जा रहे, जंक्शन से दूर जा रहे, इसका मतलब क्या, वहां पर भी जहां से वो जाएंगे वहां पर वो दे आर
है ना, वो डिप्लीटेड रीजन कहलाएगा। तो इसका मतलब है अब डिप्लीशन रीजन का क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर विड्थ का क्या हो रहा है, जैसे आपने ये पोलैरिटी लगाई डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ेगी। डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ गई इसका मतलब है पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया इसका मतलब है चार्ज कैरियर है ही नहीं जिनके वजह से करंट फ्लो होगा। सो विल देयर बी एनी करंट विच विल बी फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। दोनों चार्ज कैरियर तो दूर जा रहे हैं, है ना, दोनों चार्ज कैरियर तो दूर जा रहे हैं जंक्शन से, तो वो जंक्शन की तरफ तो नहीं आ रहे, तो करंट फ्लो होगा नहीं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो। बट देयर विल बी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट विच विल बी फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आई हैव टोल्ड यू इन पी रीजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एन रीजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये जंक्शन की तरफ जाएंगे और इनकी वजह से करंट होगा, लेकिन दैट करंट विल बी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, वो कंसीडर ही नहीं होता। इसका मतलब है अगर मैंने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया तो उसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, लेकिन मैंने अगर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो उसमें से करंट फ्लो होगा। तो इट इज है ना, इट्स लाइक पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। स्विच कैसा रहता है, ऑन किया करंट फ्लो होगा, ऑफ किया करंट फ्लो नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन डायोड भी वैसा ही काम करता। तो एक उसमें से यूज जो है पीएन जंक्शन का, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। फॉरवर्ड बायस किया तो ऑन स्विच, रिवर्स बायस किया तो ऑफ स्विच। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, ठीक है। सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, in the third quadrant, this is reverse voltage and of course this is reverse current. Reverse current is very negligible, microampere current रहेगा, और reverse voltage जो है वो हम लोग बहुत हाई रखते हैं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट। यहाँ पर आप देखो 0.1 0.2 0.3, बट here it will be like this 15 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट 30 35 40 45 और 50। सो एज ए सेड इनिशियली कोई करंट फ्लो रहेगा क्या उसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से तो कोई करंट नहीं रहेगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से नेग्लिजिबल करंट विल बी देयर, वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल बी देयर, ओके, इन अ पीएन जंक्शन डायोड, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट। जैसा मैंने बताया माइक्रो एम्प का स्केल है, उसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब है बहुत कम करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 2 है, ओके, तो वो 2 के वजह से करंट फ्लो होगा। ऑफ कोर्स दो अगर चार्ज कैरियर है उनके वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो द कंडक्टिविटी विल बी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो, है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, दे आर वेलोसिटी एक्सेलरेटेड, उनकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv², दैट मीन्स वेलोसिटी जो है उनकी बढ़ा देंगे हम, है ना। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल गो एंड हिट अनदर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, राइट। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड बम्बार्ड ऑन द कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, मतलब अभी कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आपने फिर से पोटेंशियल बढ़ाया 25 वोल्ट, है ना, 30 वोल्ट, ऐसे करके आपने पोटेंशियल बढ़ाया। तो जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो फिर से क्या होगा, अब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी वेलोसिटी एक्सेलरेटेड, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड में उसको ब्रेक करेंगे, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, what happens is the number of free electrons will keep on increasing. This effect is called as avalanche. This effect is called as avalanche effect, है ना। avalanche effect मतलब meaning of avalanche effect is
there will be accumulation of small things which will keep on increasing and becomes very high in magnitude with respect to time. यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा, टाइम के साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, चार्ज कैरियर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एंड एट अराउंड 50 वोल्ट फॉर ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी डायोड 50 वोल्ट के पास में जब चला गया रिवर्स वोल्टेज, तो देर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो दे विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और वो अगर कंडक्शन में है तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. द पॉइंट एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन voltage, and this entire effect of reverse bias condition is called as avalanche effect. Okay, so this is what is all about understanding p-n junction diode and its electrical property. Okay, the symbolic representation of p-n junction diode will be like this. Okay, this is p region, this is n region. Okay, so the arrow mark will indicate the p region, the single line will indicate n region. So a p-n junction like this, polarity if it is like this, a p-n junction diode connected like this, plus minus, p connected to positive, n connected to negative, will be forward bias, and if the polarity is like this, p connected to negative, n connected to positive, then it is reverse bias. Okay, so generally p-n junction diode can be used as a switch. Forward bias, current will flow in a p-n junction diode after knee voltage, right? And in reverse bias, no current flows, negligible amount of current flows because of minority charge carrier. So if you make sure that the reverse voltage does not increase up to the breakdown voltage, there will be negligible or no current which will be flowing in a reverse bias condition. So that is how we can use diode as a switch. There is one more application of a p-n junction diode called as rectifier, which converts it is a device which converts AC into DC. Of course, we will try to understand that in a later part. Okay, so these are the two applications of p-n junction diode. I hope you have understood.